dear students. In the previous class we have discussed about the life history variations as well as we have discussed about the beginning of population interactions. We said that in any habitat it is not possible to observe just a single species, right? A single species cannot remain, right? A single population, okay, that cannot have an independent existence, or they cannot live in isolation. Okay, so this means that every organism has a dependence on the another organism for its survival. And that is how interaction between the population comes into existence, and it plays a very major role. So any habitat cannot just have presence of a single species. Okay, so there can never be such a thing that a single species, a population of a single organisms is being found in that particular habitat. This is actually not existent only. Everywhere we observe that at least one more species will be required on which it can at least feed. At least one more species. At least one more species is required on which it can feed. मतलब कोई भी पॉपुलेशन हो वो आइसोलेशन में कभी भी रह नहीं सकती. It cannot stay in isolated away from the other species. Always there is requirement of one more species. और वो species एटलीस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसपे वो खुद प्रिडेट कर सके, राइट? कुछ फूड के लिए तो होना चाहिए. तो इंडिविजुअल पॉपुलेशन तो कभी पॉसिबल होती ही नहीं है, राइट? सो दिस इंडिकेट्स दैट even the plants कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट स्टिल डिपेंड ऑन द सॉइल माइक्रोब्स फॉर कन्वर्टिंग complex organic material into absorbable inorganic nutrient. राइट, हम कोई भी पॉपुलेशन की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो डू वी स्टे इन आइसोलेशन? नो. If we talk about other animals in the forest, there is only one species of animal that is being found and no other types of animals found in that habitat. No, it's not possible, right? It's practically not existent only. हर एक organism को दूसरे organism की जरूरत पड़ती है. Whether the relation is only of predating and prey, then also it also depends upon at least one other species. तो एक और species की तो जरूरत पड़ ही जाती है जिसपे वो feed कर सके. अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स तो खुद ही ऑटोट्रॉफिक हैं. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. फिर भी वो किस पे डिपेंडेंट हैं? सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि यही वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर सके इनटू द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. और यही इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं. और ये अब्सॉर्ब करते हैं, देन ओनली द प्लांट्स कैन एबल टू सर्वाइव एंड फर्दर दे कैन प्रोड्यूस देयर फूड, राइट? सो वेदर इट इज बैक्टीरिया, दैट इज माइक्रोब्स, और प्लांट्स और एनिमल्स cannot remain, they all cannot remain in isolation. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो, प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लो, कोई भी आइसोलेशन में रहता नहीं है.
What do? They interact with the species of other populations, and this interaction can be of two types, that can be interspecific and intraspecific interactions. So they interact with the species of other population, दूसरे पॉपुलेशन के स्पीसीज से ये इंटरेक्ट करते हैं. मतलब आप बोल सकते हो कि वन पॉपुलेशन विल बी इंटरेक्टिंग विद द another population. Okay, so they will be interacting with the species of other population. Now this interaction can be interspecific and intraspecific. Okay, so this interaction between the two species of different populations is either intraspecific or interspecific. So interactions which are existing between the species of the same population, अगर वो same population के बीच में interaction है, मतलब a human interacting with another human, एक ही population में हुआ interaction, right? If a dog is interacting with another dog, then it is also within the same population. तो same population में जो होते हैं वो interactions की बात हम नहीं कर रहे. We are talking about the interactions between the species of the other population, and these interactions can be beneficial. इंट्रैक्शन कैसा हो सकता है? या तो बेनिफिशियल, मतलब एक को बेनिफिट हो रहा है या दोनों को ही बेनिफिट हो रहा है. ठीक है. दीज इंट्रैक्शंस कैन ऑल्सो बी डेट्रीमेंटल. डेट्रीमेंटल मतलब एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है पर दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, या तो दोनों ही ऑर्गेनिज्म के लिए वो इंट्रैक्शन हार्मफुल है. ठीक है, दोनों ही लॉस में है. तो डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल, या ऐसा भी इंट्रैक्शन हो सकता है जहां पे किसी एक ऑर्गेनिज्म को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई एडवांटेज मिल रहा है. तो ये जो इंट्रैक्शंस होते हैं बिटवीन द स्पीसीज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, these interactions will be either beneficial type, detrimental type और neutral type. beneficial के लिए हम साइन देते हैं प्लस. अगर प्लस साइन लिखा हो इसका मतलब कि इट इज बेनिफिशियल. डेट्रीमेंटल के लिए हम साइन लेते हैं माइनस और न्यूट्रल के लिए हम साइन लेते हैं 0. ठीक है, अगर किसी के लिए बेनिफिशियल होता है तो प्लस साइन लिया जाता है, दैट इट इज बेनिफिटेड टू वन स्पीसीज. ओके, तो यहाँ पे हम समझाते हैं कि कौन से तरह के इंटरेक्शंस पॉसिबल है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस दैट आर एग्जिस्टिंग, राइट. Mutualism is an interaction in which both the species are benefited. Second type of interaction is competition. Third is predation. Fourth is parasitism, commensalism and amensalism. So in the topic of population interaction, we are going to discuss about 6 type of interactions that exist between the populations. तो म्यूचुअलिज्म जो होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ इंटरैक्शन इन विच इफ वी कंसीडर दो स्पीसीज को कंसीडर कर लेते हैं, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी. ठीक है, ये इंटरैक्शन है और ये स्पीसीज ए है और एक स्पीसीज बी है. तो म्यूचुअलिज्म जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों के बीच में जो भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर हो रहे हैं एंड दे आर नॉट फाइटिंग, बेनिफिशियल है दोनों के लिए. Such type of interactions are beneficial to both the individuals. दोनों ही इंडिविजुअल के लिए फायदा रहता है अगर वो म्यूचुअलिज्म में रहे. जैसे कि the root nodules and of the leguminous plants, right, and rhizobium. तो ये प्लांट के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि उसे नाइट्रोजन फिक्सिंग मिल रहा है
एंड माइक्रोब्स के लिए भी बेनिफिशियल बिकॉज दे आर गेटिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो ये कैसा टाइप का रिलेशन हुआ? म्यूचुअल, राइट, सिम्बायोटिक रिलेशन इन विच बोथ आर बेनिफिटेड। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, जबकि कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है। इट इज डेट्रीमेंटल फॉर बोथ because you both are competing for the same resource, so both of them are going to be injured, both of them are going to fight. So maybe there might be just a sharing of the resources, right? Partially share हो जाएंगे because a bit of it will be taken by one and a bit of the food will be taken by the another. तो ये compete कर रहे हैं, तो competition में दोनों का क्या होता है? लॉस होता है, क्योंकि किसी भी एक को completely fulfilled resource नहीं मिल रहा। प्रीडेशन और पैरासाइटिज्म की बात करें तो व्हेन वन इज प्रीडेटर तो वो बेनिफिट पे रहता है, और दूसरा जो है दैट इज गोइंग टू बी एट अ लॉस, क्योंकि क्या करने वाला है? वन इज अ प्रीडेटर एंड इट इज गोइंग टू फीड ऑन द प्रे, तो प्रे जो रहा दैट इज एट अ लॉस, तो उसके लिए डेट्रीमेंटल हुआ, और प्रीडेटर जो है दैट इज गेटिंग द फूड, सो इट विल बी एट अ बेनिफिट। सो प्रीडेशन में एक को बेनिफिट मिलता है और एक को डेट्रीमेंटल इफेक्ट है, जबकि पैरासाइटिज्म में भी यही रहेगा, वन विल बी बेनिफिटेड, क्योंकि पैरासाइट जो है वो बॉडी में अंदर या बॉडी के बाहर रहेगा और डायरेक्टली क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करेगा, तो उससे तो फायदा ही है, होस्ट मिल रहा है रहने के लिए प्लस न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जबकि जो होस्ट है उसके लिए लॉस रहेगा, क्योंकि होस्ट विल बी लूजिंग द न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू दैट पैरासाइट। तो ये रहेगा कमेंसालिज्म और एमेंसालिज्म जो रिलेशंस हैं, उसमें कमेंसालिज्म में एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो बेनिफिट पे रहता है, और दूसरा जो होता है उससे नाइदर बेनिफिट नाइदर लॉस, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, ऐसे रिलेशन को कहा जाता है कमेंसालिज्म। वन इज एट एन एडवांटेज ऑफ गेटिंग समथिंग एंड द अनदर इज नॉट इवन एडवांटेज एंड नॉट इवन एट अ लॉस, ठीक है। और एमेंसालिज्म जो है उसमें वन इज, मतलब ये जो रिलेशन है एमेंसालिज्म, इसमें क्या होता है कि एक को लॉस रहता है और एक को कोई इफेक्ट रहता नहीं है। सो वन स्पीसीज एट अ लॉस एंड द अनदर वन इज unaffected. So such type of 6 relations which we are going to talk, six types of interactions that we are going to discuss. हमने क्या डिस्कस किया? कोई भी हैबिटेट ऐसा नहीं होता जिसमें इनहैबिटेंट कोई सिंगल स्पीसीज हो। हर एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। ये इंटरेक्शन फूड के लिए हो, शेल्टर के लिए हो, कोई प्लेस के लिए हो, राइट, मेटिंग के लिए हो, कोई भी हो, but it always interacts with the species of other populations. So at least there should be one more species on which it can feed. प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो खुद का फूड बना सकते हैं, बट फिर भी वो सॉइल पे डिपेंडेंट है, सॉइल माइक्रोब्स पे, so that they can break down the complex substance and plants can get the nutrients, right, inorganic nutrients. कोई भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता, और ये जो है वो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे ही इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं। 6 ऐसे इंटरेक्शंस हैं: म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, पैरासाइटिज्म, commensalism and amensalism. So now we are going to start with all of them. The first we are going to discuss is about the predation. So as we said that there are different types of population interactions, and now we are going to begin with the first population interaction, and that is predation. Now predation is a very simple mechanism, that is there will be an organism that will be feeding on another organism. इसे कहा जाता है predation. Simple language में बात करें तो हम जब बात करते हैं a tiger feeds on a deer, right? So that is also an example of the predation. That tiger किस पे feed कर रहा है? Deer पे, right? A cat feeds on a rat is a simple example that cat is a predator and the rat is the prey. Predator जिस पे feed करता है उसे कहा जाता है prey. So there is a very common relation, like every organism, right, tries to at least engulf or feed some of the other species which is either less dominant or smaller in size. So such organism, such relationship of feeding on another species, that will be a relation of the predation and the prey, or predator and the prey. So these predation and prey is very important,
as a concept for passing on the energy to the higher trophic level. अब मान लेते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक हैं एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, बट क्या प्लांट्स को अगर कोई हर्बीवोर्स कंज्यूम ही नहीं करता तो वुड द एनर्जी बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल? ऑब्वियसली नॉट. प्लांट्स पे जब कोई एनिमल फीड करता है तो वो जो एनर्जी जो प्लांट्स में है, दैट एनर्जी इज ड्यू टू व्हाट? सनलाइट से, फोटोसिंथेसिस से उन्होंने जो फूड बनाया है, दैट फूड इज एक्चुअली अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो ट्रांसफर हो रहा है टू द हायर ट्रॉफिक लेवल. If there was no predator of plants, would the energy be passed on to the next trophic level? Obviously not. So autotrophic plants which prepare their own food will be working as, or they will be the prey for a herbivore organism जो उस पे feed कर रहा है. So autotrophic plants are being feeded by the herbivores, right? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को कौन एनगल्फ करता है, कौन खाता है इन्हें? हर्बीवोर्स खाते हैं. तो हर्बीवोर्स जब उन्हें एनगल्फ करते हैं उसका मतलब ये हुआ दस एनर्जी ऑफ द प्लांट्स दैट इज प्रेजेंट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस is transferred to higher ट्रॉफिक लेवल. मतलब प्लांट्स में जो एनर्जी है, राइट, वो सनलाइट की एनर्जी को एक केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. अब यही केमिकल एनर्जी आगे किस में जाने वाली है? हर्बीवोर्स में. हर्बीवोर्स से किस में जाने वाली है? कार्निवोर्स में. दैट इंडिकेट्स दैट द एनर्जी इज बीइंग पास्ड ऑन टू द हायर ट्रॉफिक लेवल. इमेजिन इफ देयर इज नो प्रेडेटर ऑफ प्लांट इटसेल्फ. प्लांट को खाने वाला कोई है ही नहीं, तो would the energy move on to the next trophic level? No, it is not possible. So for passing on the energy to the next trophic level, nature has developed the relation of the predator and the prey. नेचर ने प्रीडेटर प्रे का रिलेशन इसीलिए डेवलप किया है कि एक और लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी जो है वो कंड्यूट, दैट इज ट्रांसफर हो सके, राइट? हम जब खाना खाते हैं वी फीड ऑन बोथ हर्बी, दैट इज वी फीड डायरेक्टली ऑन द प्लांट्स ऑल्सो, वी फीड ऑन एनिमल्स ऑल्सो. So we are actually at the highest trophic level because we are getting energy from all the sources. Herbivores जो है they get the energy from plants. Herbivores की एनर्जी आगे किस में पास ऑन हो रही है? हायर ट्रॉफिक लेवल, मतलब कार्निवोर्स में. The energy is passing on to higher trophic level, and who is responsible for it? The predator-prey relation is important for it, and this type of interaction is known as the predation. प्रेडेशन में एक हमेशा बेनिफिट पे रहता है और एक लॉस पे रहता है. यहाँ पे जैसे कि हर्बीवोर प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं, मतलब हर्बीवोर्स आर एट पॉजिटिव बेनिफिशियल साइड, और प्लांट्स आर गोइंग टू बी एट अ नेगेटिव साइड, राइट? सो further we talk that if we talk about an example of predation, we see that tiger feeding or predating on a deer, but also a bird predating seed is also an example of predation. हम हमेशा एनिमल्स की बात करते हैं. दैट टाइगर जो है वो अगर डियर पे फीड करता है तो इट इज अ प्रेडेशन, राइट? टाइगर इज द प्रेडेटर एंड दैट डियर इज अ प्रे. पर ऐसा जरूरी नहीं है. जब हम ऐसी बात करते हैं कि बर्ड्स जो है वो सीड्स पे फीड करते हैं, तो यहाँ पे भी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप पॉसिबल है, right? This is also predator prey. Herbivore feeding on plants is also a relationship called predator and the prey. तो ऐसे कोई भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं. अब प्रीडेशन का एक रोल क्या हुआ? conduits, that is they act as conduits for transferring the energy to higher trophic level, right? तो पहला रोल क्या हुआ? transfer energy to higher ट्रॉफिक लेवल.
ये सबसे पहला रोल हुआ प्रीडेटर का। पर इसके अलावा भी प्रीडेटर और प्रे का बहुत मतलब ये जो प्रीडेशन इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अवर इकोलॉजिकल फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इट डज, इट कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ prey. Second important thing it does is controls the population of the prey. Right? पहला तो क्या हुआ कि it serves as an agent which will be transferring the energy to higher trophic level. Predation है तो एनर्जी आगे के ट्रॉफिक लेवल में पास होगी। सेकेंड रोल क्या है कि वो क्या करता है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। किसकी पॉपुलेशन को? प्रे। अगर प्रे का कोई प्रीडेटर है ही नहीं तो प्रे की पॉपुलेशन अबेंडेंटली बढ़ती जाएगी। Are you getting it? So it is very important to have a controlled ecological balance, controlled population of the prey. And therefore, for controlling the population of prey, we have a predator. Let us take an example. In Australia, there is a prickly pear cactus. एक कैक्टस प्लांट है वो लाया गया था, मतलब बाहर से कोई दूसरे कंट्री में से ये जो प्रिकली पियर कैक्टस है दैट वाज ब्रॉट टू द ऑस्ट्रेलिया। अब वहां पे उसका कोई नो नेचुरल प्रीडेटर, कोई इस कैक्टस पे फीड नहीं करता था, इसीलिए उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर था नहीं। इसीलिए क्या हुआ, दैट कैक्टस ग्रू अप टू several hectares. Okay, prickly pear cactus was brought from some other country to Australia, and within a short interval of time, as there was no predator of this cactus, ये जो प्लांट है वो several hectares तक ये ग्रो हो गया। अब बहुत सारे हेक्टर्स तक ग्रो हो गया, then again it became a problem क्योंकि उसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी। So a predator, a moth was introduced as a predator. तो वहां पे कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं था, इसीलिए एक मॉथ को इंट्रोड्यूस किया एज अ प्रीडेटर, एंड देन आफ्टर द पॉपुलेशन ऑफ द प्रिकली पियर कैक्टस गॉट रिड्यूस। तो ये क्या समझाता है ये एग्जाम्पल? दिस एग्जाम्पल शोज दैट अगर प्रीडेटर है तो प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल्ड है, अगर प्रीडेटर नहीं है तो प्रे की पॉपुलेशन अनकंट्रोलेबली बढ़ती ही जाएगी, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। आर यू गेटिंग इट? So that is one of the important reason. Another is the third reason why this relation is important is that predators help in maintaining species diversity, helps in maintaining species diversity. अब ये स्पीसीज की डाइवर्सिटी के लिए प्रीडेटर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल है, राइट? तो प्रीडेटर्स जो हैं वो पर्टिकुलर अगर प्रीडेटर प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है कि इसके साथ साथ जो एसोसिएटेड जो दूसरे स्पीसीज हैं इनवर्टिब्रेट्स के वो भी जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इफ द प्रीडेटर इज नॉट अवेलेबल, प्रीडेटर ही नहीं है तो स्पीसीज में डाइवर्सिटी पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज जो पैसिफिक है ओशियन, वहां पे एक स्टारफिश है पिसास्टर। पिसास्टर इज अ स्टारफिश, ठीक है? तो पैसिफिक कोस्ट में ये स्टारफिश है पिसास्टर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। क्या है ये स्टारफिश? एक प्रीडेटर है, ठीक है? अगर इस स्टारफिश को रिमूव कर दिया जाए, इफ द स्टारफिश इज रिमूव्ड, डिफरेंट अबाउट 10 species of invertebrates got extinct. क्यों extinct हो जाएंगे? Because competition between the prey species is going to increase. एक प्रीडेटर है, एक प्रे है,
ठीक है। अब प्रे जो है उनके स्पीसीज पानी में बहुत सारे होने वाले, ऐसा जरूरी तो है नहीं कि एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म हो, बहुत सारे इन्वर्टिब्रेट्स होंगे। तो अब ये जो सारे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स उतने लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कम्पीट करेंगे, बहुत ज्यादा कम्पीट करेंगे। कब? जब बहुत ज्यादा स्पीसीज बढ़ जाएंगे, राइट। इफ द स्पीसीज आर मोर दे विल बी कंपीटिंग मोर फॉर दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। प्रीडेटर जो है वो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ना करे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंट्रोल करे तो लिमिटेड नंबर रहेंगे, लिमिटेड नंबर रहेंगे तो सबके सब सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। all would be able to survive, all the diversity would be able to survive if the competition is less। पर अगर कोई प्रीडेटर ही नहीं है तो प्रे का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, प्रे का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा मतलब क्या होगा? कंपटीशन बढ़ता जाएगा। कंपटीशन में ऐसा होगा कि कई प्रे स्पीसीज जो हैं वो नहीं कवर कर पाएंगे एंड दे विल डाई। ऐसे करते करते कई सारे प्रे स्पीसीज क्या हो जाएंगे? एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। पर अगर उनका प्रीडेटर है एक, तो प्रीडेटर के प्रेजेंस में क्या होगा? प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी, और कंट्रोल्ड पॉपुलेशन अगर होगी तो ऑल विल गेट अ चांस टू सर्वाइव एंड ऑल विल गेट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर द सर्वाइवल। एंड देयरफॉर इफ द पिसास्टर स्टारफिश इज रिमूव्ड, तो ऐसे कई इन्वर्टिब्रेट्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन इन्वर्टिब्रेट्स में कंपटीशन बहुत ही बढ़ चुका था, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ देम वर नॉट एबल टू सर्वाइव। टू ओवरकम इट देयर वर ओनली लिमिटेड नंबर, दैट इज prey, that is predator, which is very very important for this problem। तो प्रिडेशन एक तो क्या करता है? एनर्जी लेवल हायर ट्रॉफिक लेवल्स में पहुंचाता है, राइट। सेकेंड क्या करता है? प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। थर्ड, प्रिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी अमॉन्ग द स्पीसीज। स्पीसीज डाइवर्सिटी तभी पॉसिबल है जब प्रिडेटर हो, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि प्रीडेटर जो है वो नेचर में प्रूडेंट होता है और वो प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करता है। पर अगर वो सारे ही प्रे को इंगल्फ कर जाएगा, इट विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू सर्वाइव, राइट। सो समटाइम्स द प्रीडेटर ओवर exploits द प्रे। तो सारे ही प्रे को अगर वो एंगल्फ कर जाएगा तो क्या होगा? देन आफ्टर द प्रीडेटर मे ऑल्सो नॉट सर्वाइव। अगर वो सारे प्रे पे फीड कर लेगा तो उसका खुद का सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए प्रीडेटर्स जो होते हैं उनको नेचर में प्रूडेंट कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी वो प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं और सारे ही जो प्रे है उन्हें खा जाते हैं। अब ऐसा करने पर वो खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग है, और इससे बचने के लिए प्रे जो है दैट हैज डेवलप्ड सर्टेन डिफेंसिव मैकेनिज्म। सो प्रे डेवलप्स certain defensive strategies। डिफेंसिव स्ट्रेटेजी मतलब क्या? कि प्रे जो है वो एक ऐसा स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहा है सो दैट इट कैन बी रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रीडेटर। फॉर एग्जाम्पल कई फ्रॉग्स जो होते हैं, राइट, वो क्या करते हैं? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब अपने खुद का जो कलर होता है उसे चेंज कर देते हैं एंड दे मिक्स इट विद द कलर ऑफ द सराउंडिंग। तो नेचर का जो कलर है वैसा कलर डेवलप कर देते हैं, खुद का कलर चेंज कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो डिफेंड हो जाते हैं, मतलब दे कैन रिमेन हिडन एंड द प्रीडेटर विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई देम। सम ऑफ देम कहीं ऐसे भी होते हैं, जैसे कि एक मोनार्क बटरफ्लाई है। तो मोनार्क बटरफ्लाई क्या करता है? व्हेन इट इज एट अ कैटरपिलर स्टेज इट फीड्स ऑन अ पॉइजनस वीड। जब वो कैटरपिलर स्टेज पे होता है तो वो एक पॉइजनस वीड पे फीड करता है, और जब वो उस पे वीड पे फीड करता है दैट इट इटसेल्फ बिकम्स पॉइजनस। इसीलिए कोई भी प्रीडेटर उसके ऊपर एंगल्फ करने आता नहीं है, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाई इटसेल्फ इज अनपैलेटेबल। अनपैलेटेबल क्यों हो गया? अनपैलेटेबल मतलब उसे कोई खाने ही नहीं आएगा, बिकॉज इट इज मिमिकिंग एज इफ इट इज वेरी पॉइजनस। वो खुद ही जब कैटरपिलर स्टेज में होता है तो पॉइजनस वीड को फीड करता है, जिसकी वजह से वो पॉइजन उनकी बॉडी में होता है, सो दैट एवरी प्रीडेटर स्टेज अवे फ्रॉम सच टाइप ऑफ बटरफ्लाई।
तो कोई ऑर्गेनिजम्स अपना कलर चेंज कर लेते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म किसी को मिमिक कर लेते हैं, मतलब किसी की तरह एक्ट करते हैं, राइट। जैसे कि आपने देखा होगा स्टिक इंसेक्ट, स्टिक इंसेक्ट को देख के आपको लगेगा ही नहीं कि वो इस इंसेक्ट है या तो वो एक स्टिक है, यू विल फील दैट इट इज अपीयरिंग लाइक स्टिक ओनली। ऐसे लीफ इंसेक्ट्स भी होते हैं, ये क्या करते हैं, मिमिक करते हैं, दूसरे को ऐसे मिमिक करते हैं कि कोई प्रीडेटर उन्हें पहचान ना पाए। कई ऐसे होते हैं जो खुद अनपैलेटेबल हो जाते हैं, मतलब उनका टेस्ट ही ऐसा हो जाता है दैट नो वन कम्स टू फीड देम। प्लांट्स होते हैं तो प्लांट्स तो मूव कर नहीं सकते, राइट। देयर आर मेनी इंसेक्ट्स which feed on plant. There are many insects that feed on plant sap. ऐसे इंसेक्ट को कहा जाता है फाइटोफेगस। फाइटोफेगस आर द इंसेक्ट्स दैट फीड ऑन द प्लांट सैप। अब प्लांट्स तो मूव हो नहीं सकते, ये तो एनिमल्स की बात है। कैमोफ्लेज और मोनार्क बटरफ्लाई जो अनपैलेटेबल हो जाते हैं, वो किसकी बात की हमने, एनिमल्स की बात की। पर प्लांट्स पे जो फीड करते हैं तो प्लांट्स कैसे बच पाएंगे, क्योंकि प्लांट्स तो मूव भी नहीं होते। और ऐसे कई सारे अबाउट 25% ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट सैप पे फीड करते हैं। तो उनसे बचने के लिए प्लांट्स जो है वो तो मूव भी नहीं कर पाते, तो प्लांट्स क्या करते हैं, तो सम ऑफ द प्लांट्स विल बिकम, जैसे कि कई प्लांट्स जो है जैसे कि अकेशिया है, ओपुंशिया है, वो थॉर्न्स या स्पाइन्स डेवलप कर लेते हैं, राइट। सो अकेशिया जैसे प्लांट्स में थॉर्न्स, स्पाइन्स डेवलप होना, तो स्पाइन्स बनाने पे क्या करेंगे, वो प्रेडेटर से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। दूसरा ऐसा प्लांट है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस जो प्लांट है, ये कैलोट्रोपिस भी कैसा होता है कि वो अबेंडेंट लैंड में काफी ग्रो हो जाता है, राइट, जिसे हम कहते हैं आंकड़ों। तो कैलोट्रोपिस जो है दैट इज वेरी कॉमन प्लांट जिसपे कोई भी गोट या कुछ फीड करने ही नहीं आते, क्योंकि उनके पास ऐसे पॉइजनस, ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है दैट दे विल रिमेन अवे फ्रॉम एनी ऑफ द फीडिंग और ग्रेजिंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। कोई भी गोट या कोई भी उस पर ग्रेज ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसे पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, तो उनका फीडिंग पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा प्लांट्स ऑल्सो हैव सब्सटेंसेस लाइक, ऐसे प्लांट्स जिसमें कैफीन हो, ओपियम हो, राइट, ऐसे सब्सटेंसेस भी अगर प्लांट्स में होते हैं देन दे कैन रिमेन अवे फ्रॉम ग्रेजिंग। ग्रेजिंग या फीड करने उन पे कोई आ ही नहीं सकता ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सच टॉक्सिक, सच पॉइजनस मटेरियल। सो प्रीडेशन मैंने थोड़ा ब्रीफ में लिखा है, यू विल हैव टू रिफर योर टेक्स्ट बुक फॉर द डिटेल्ड इंट्रोडक्शन, ओके, डिटेल्ड टॉपिक। मैंने ब्रीफ में सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हैं। सो प्रीडेशन इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच वन इज प्रीडेटर एंड द अनदर वन इज प्रे। प्रीडेशन जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि हायर ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी को ले जाना। जो भी प्रीडेटर है वो जब प्रे पे फीड करता है तो इट कंज्यूम्स द एनर्जी फ्रॉम इट, then after it will be moving on to the next trophic level, and this way energy transfers to the higher trophic level by the relation of predation. Secondly, ये prey के population को control करता है, और third, it will be maintaining the species diversity. prey के population में control करने में example हम ले सकते हैं prickly pear cactus का, जो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ग्रो हो गया था, and then after उसका एक predator introduce किया गया moth, जिसकी वजह से उसकी population control हुई। सेम वे स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक स्टारफिश है पिसास्टर, अगर इस स्टारफिश को रिमूव कर दिया तो इनवर्टिब्रेट्स में कंपटीशन बहुत ही बढ़ जाती है फॉर द रिसोर्सेस, और फिर क्या हो जाता है, इनवर्टिब्रेट्स गेट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट ना हो, उनकी डाइवर्सिटी मेंटेन्ड हो, इसीलिए क्या होना चाहिए, एक प्रीडेटर वहां पे होना चाहिए जो प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करे और स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करे। कई बार प्रीडेटर्स इतने प्रूडेंट होते हैं कि वो प्रे को खुद ही, पूरे ही सारे प्रे को खा जाते हैं। ऐसा करने पर प्रीडेटर्स भी आगे सरवाइव नहीं कर पाते। इनसे बचने के लिए प्रे ने कई सारे डिफेंसिव मेथड्स भी डेवलप किए हैं। सम ऑफ देम अंडरगो कैमोफ्लेज, सम ऑफ देम बिकम अनपैलेटेबल, डिसटेस्टफुल, ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें कोई कंज्यूम ही ना करे। सम ऑफ देम इनकॉर्पोरेट आइदर मिमिक अदर ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स जो होते हैं वो प्लांट पे भी फीड करते हैं, तो प्लांट्स कई होते हैं जो थॉर्न्स या स्पाइन्स डेवलप कर लेते हैं। कई प्लांट्स खुद में टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई फीड करता नहीं है, जैसे कि कैलोट्रोपिस।
कई प्लांट्स जिसमें कैफीन, ओपियम जैसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो जिन्हें भी कोई ऑर्गेनिज्म फीड नहीं करता. सो देयर इज नो ग्रेजिंग पॉसिबल फॉर सच प्लांट्स एंड दैट इज हाउ दे कैन रिमेन प्रोटेक्टेड. Okay, so that is an important relation of predation. In the next class we will talk about the next relation like competition and mutualism.